In this question we have to find out the volume of HCl. So सबसे पहले हमने क्या करना है कि इक्वेशन को गौर से देख लेते हैं हम. दिस इज़ द इक्वेशन और हाईलाइट द डाटा हमारे पास गिवन है. HCl का कॉन्सेंट्रेशन इज़ गिवन बिकॉज द यूनिट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोल पर डीएम क्यूब. सो आई एम गोना राइट ऑन C. This is the concentration and the mass of manganese oxide is this, so I'm going to write down M. So the first part is to find out the moles of MnO2. So in order to find out the moles we need to apply the formula N is equals to mass over Mr. So what's the mass? The mass is 3.48 divided by Mr of MnO2 is the mass of Mn is 55 and the atomic mass of oxygen is 16. There are two oxygens, so I'm going to multiply with the 2. So 55 16 times 2 plus 55, it gives you 87. So I'm going to put 87 over here and 3.48 divided by 87. So you will end up with the moles, which is 0.04 moles. And the next part is to find out the moles of HCl. So we just have the concentration and we need to find out the moles. So let's say if I apply the formula C is equals to N over V, number of moles over volume. We have the volume, we have the concentration, but we don't have the volume. So we are not able to find out the moles by using this formula, concentration formula. So I'm going to erase this and make a relation between the known and unknown. So मेरे बच्चों हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड के मोल्स गिवन हैं. So I'm going to write down known and this is unknown. So known is MnO2. So the first step is that write down the known MnO2 क्योंकि हमें MnO2 के मोल्स पता हैं और unknown हमारे लिए HCl है. So I'm going to write down HCl over here. And the second step is कि आपने यहाँ पे coefficients को देखना है. तो मेरे बच्चों coefficient of MnO2 is 1 and the coefficient for the HCl is 4. So 1:4. And what are the moles? What are the moles in 3.48 gram of manganese oxide? 0.04. Okay, and we don't know the moles of HCl. So let's cross it. This X equals to 4 times 0.04. So 4 times 0.04, it gives you 0.16. Okay. Now the next part is we need to find out the volume of HCl. Now we can apply the formula since we have the concentration in mole per dm cube and we need to find out the volume. So I'm going to apply the formula concentration equals to N number of moles over volume. Okay. So we have the concentration which is 8 and we have the moles 0.16 and we don't know the moles of we don't know the volume. So let's rearrange it. V is equals to 0.16 divided by 8. So 0.16 divided by 8. So volume is 0.02 dm cube, but we need volume in centimeter cube. Okay, so we know that 1 decimeter cube equals to 1000 cm cube. Okay, so this is going to be 0.02 times 1000. So 0.02 divided times 1000, it gives you 20. Centimeter cube. Okay. So सबसे पहले स्टेप ये होता है कि आपने जो भी डाटा गिवन होगा उसको आपने हाईलाइट कर देना है. सो वी हैव द कॉन्सेंट्रेशन एंड वी हैव द मास. और जो भी फर्स्ट पार्ट होगा थ्योरी के क्वेश्चन में उसके लिए
हमेशा आपके पास कंप्लीट डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा. सो हमारे पास ऑलरेडी मास गिवन था, सो वी कैन अप्लाई द फार्मूला एन इज इक्वल टू मास और मोलर मास, और हमारे पास मोल्स आ गए. सेकेंड स्टेप में हमारे पास इनकम्प्लीट डाटा था, तो हमने रेशो मेथड लगा के और हमने मोल्स ऑफ HCl निकाल लिए. एंड थर्ड स्टेप में हमने कॉन्सेंट्रेशन फार्मूला यूज़ करके वॉल्यूम निकाल लिया. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और डाटा को हाईलाइट कर लेते हैं. वी हैव द वॉल्यूम, वी हैव द कॉन्सेंट्रेशन बच्चों ऑफ व्हाट, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड we have the volume of sulfuric acid which is 20 centimeter cube. So I'm going to write down V. Okay, so in the first step we need to find out the moles of sodium hydroxide. डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट डाटा को हाईलाइट किया, इक्वेशन को देखा आपने, और फर्स्ट स्टेप पे हम चले गए. सो वी नीड टू फाइंड आउट द मोल्स, एंड वेन एवर यू हैव द वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन, and if you have the volume in centimeter cube, then you need to apply this formula. C is equals to n over V times 1000. Okay बच्चों, C is equals to n over V times 1000. So whenever you have the volume in centimeter cube, तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, n over V times 1000. आपको इनडायरेक्टली इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू यूज़ दिस फार्मूला. ओके, सो हम ये डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं. Concentration is 0.200. Okay बच्चों, and volume is 25 बच्चों times 1000. So आपके पास आ गया 0.200 times 25 divided by 1000. So let's calculate. So 0.200 times 25 divided by 1000. So the answer is 0.005. And in the next step we need to find out the moles of dilute sulfuric acid. Okay बच्चों, so we need to find out the moles of sulfuric acid. अब हम sulfuric acid के moles निकाल सकते हैं if we have the concentration and volume. अब हमारे पास sulfuric acid का सिर्फ volume हमें गिवन है. ओके बच्चों, सो आप ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, तो सेकेंड पार्ट में आपने रेशियो मेथड लगाया, नोन अननोन. सो वी हैव द नोन, वी हैव द सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका हमें डाटा कंप्लीट गिवन है, एंड आई एम गोना राइट डाउन सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों, एंड देन वी नीड टू चेक द कोफिशिएंट. बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीछे 2 लिखा हुआ है एंड सल्फ्यूरिक एसिड के पीछे 1. ओके, नाउ we know the moles of sodium hydroxide which is 0.005, but we don't know the moles of sulfuric acid, so I'm going to use the x and let's cross it. So 2x equals to 0.005, and 0.005 divided by 2 is 0.005 divided by 2 is 0.0025. Okay bachcho, and the next part is we need to find out the concentration. Now we can find out the concentration of sulfuric acid by using the concentration formula, which is C is equals to N over V, okay, times 1000. I'm going to use this formula because we have the volume in centimeter cube. बच्चों ये याद कर लो, आप जब भी वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा, आप कुछ बच्चे इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड बाई 1000 करके डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, एंड देन C is equals to N over V टाइम फार्मूला अप्लाई करके ओके आप इसमें डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो. बट डायरेक्ट वे ये है कि अगर आपके पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा तो डायरेक्टली आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपका वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा DM क्यूब में ऑलरेडी. ओके, सो वी हैव द C is equals to N over V times 1000. दिस इज द फार्मूला. सो वी हैव द वॉल्यूम विच इज़ 20. लेट्स चेक अगेन, दिस इज वॉल्यूम. So number of moles 0.0025 बच्चों, volume is 20 and times 1000. 0.0025 divided by 20 multiplied by 1000, you will end up with 0.125. So now we have the concentration in mole per DM cube. So the unit for the concentration is mole per DM cube. एक हमारे पास ये यूनिट है, और एक यूनिट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का, ये आपने टॉपिक में पढ़ा होगा, ग्राम पर DM क्यूब. ओके,
यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब में आपने आंसर निकाल लिया। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी इन ग्राम पर डीएम क्यूब। बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ग्राम। सो कैन वी convert this mole into the grams? Yes, we can convert this mole into the gram by applying this formula, n is equals to mass over molar mass. Okay बच्चों, let's rearrange it, n times mr equals to mass. Now बच्चों मोल्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.125 एंड mr सल्फ्यूरिक एसिड का हम निकाल लेंगे H2SO4. सो एटॉमिक मास ऑफ hydrogen is 1. How many hydrogens? 2, so I'm going to write down 2. And then sulfur is 32 and then 16 times 4. Okay, ये आप periodic table से देखोगे बच्चों, और हम इसको देख लेते हैं 2 plus 32 और plus 16 times 4. Okay, so you will end up with 98. So I'm going to put 98 over here and then we can find out the mass. 98 times 0.125, so you will end up with 12.25 grams. So you have the mass to 12.25 grams. Okay, so you haven't changed this dm cube, you have been changed this mole into the grams. So it means that 0.125 moles are equals to 12.25. So I'm going to write down 12.25 grams per dm cube. Okay, dm cube को आपने चेंज नहीं किया, आपने जस्ट मोल को ग्राम में चेंज कर दिया by using this formula, n is equals to m over mr. Now let's talk about the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें वी हैव द इक्वेशन एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ वी नीड टू चेक द डाटा. सो हमारे पास डाटा ये है 4.80 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया. सो आई एम गोना राइट ऑन वी. सो दिस इज़ वॉल्यूम एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो हम निकाल लेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि अमोनिया का सिर्फ हमें वॉल्यूम गिवन है. सो हमें जो जिसका डाटा गिवन होगा हम उसकी हेल्प से देखते हैं कि आगे फर्दर क्या निकाल सकते हैं. ओके, सो वी हैव द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. सो आई एम गोना राइट डाउन अमोनिया ओवर हियर एंड देन यूजिंग द फॉर्मूला V/24. Okay, this is the molar volume formula and we have the volume which is 4.80 divided by 24. So मेरे बच्चों 4.80 divided by 24 will give you 0.2. So we have the mole of ammonia. So सबसे पहला स्टेप ये होता है कि बेटा जिस चीज़ का, जिस स्पीशीज, जिस सब्सटेंस का आपको कंप्लीट डाटा गिवन होगा, आपने पहले उससे फर्दर देखना है फॉर्मूला यूज़ करके क्या निकाला जा सकता है. इट मीन्स कि अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गिवन है तो हमने राइट फार्मूला सोचना है कि किस फार्मूला से आप फर्दर अमोनिया की फर्दर कोई वैल्यू निकाल सकते हो. अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन था तो हम ये फार्मूला यूज़ करके मोल्स निकाल सकते हैं. तो आप देख लो कि वॉल्यूम को यूज़ करके हमने मोल्स निकाल लिए. दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप. एंड द सेकंड स्टेप इज़, देखो हमारा गोल ये है कि वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हमने फार्मूला लगाना है V/24. नाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगर हमारे पास मोल्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के. यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स ही नहीं है. सो जब आपके पास डाटा गिवन नहीं होगा तो आप यहाँ पे रेशियो मेथड लगाओगे. आई एम गोना राइट डाउन नोन एंड अननोन. आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, इसके मार्क्स नहीं है अननोन नोन लिखने के, बट मैं यहाँ पे आपके लिए, आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे. सो नोन यहाँ पे जो है आपके पास वो है अमोनिया. नोन मीन्स कि अमोनिया का डाटा आपको गिवन भी था और आपने फर्दर मोल्स भी निकाल लिए. हम इंटरेस्टेड मोल्स में हैं. ओके ओके, सो अननोन इज़ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ अमोनिया. और कोफिशिएंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास 4 ये आ गया, 5 इसका कोफिशिएंट आ गया. दीज आर द कोफिशिएंट्स. और 4 अमोनिया है, 5 दीज आर द कोफिशिएंट्स. एंड देन अमोनिया के मोल्स हमारे पास 0.2 हैं. वी डोंट नो द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो आई एम गोना राइट डाउन x and then 4x equals to 5 times 0.2 and x equals to 5 times 0.2 divided by 4. So 5 times 0.2 divided by 4 will give you 0.25. So these are the moles of oxygen. Okay bachcho, moles of oxygen. Now we have the moles of oxygen, so I'm going to put moles value in this formula because we need to find the volume.
So let's rearrange it. 0.25 times 24 will give you the volume. So 0.25 multiplied by 24, it will give you volume which is in dm cube. सो बेटा इस वर्कशीट में आपने एक और फॉर्मूला याद करना है, वॉल्यूम ओवर 24। और यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो वॉल्यूम है आपके पास, दैट इज़ इन डीएम क्यूब। ओके, सो जब भी आपको वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में गिवन होगा, सो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और जब आपके पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा, तो आपने फॉर्मूला लगाना है v इज एन इज इक्वल टू वी ओवर 24,000। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास डीएम क्यूब में था, तो हमने फार्मूला ये वाला यूज़ किया। और अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा, तो आपने फार्मूला वी ओवर 24,000 यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोल्स। In the next question we have we need to find out the volume of chlorine gas, and we have the mass of sodium chloride. Acha, I'm going to write down mass over here, and then this is the equation. Okay bachcho, and we have only the mass of sodium chloride, and we need to find out what we need to find out the volume of chlorine gas. So the first step, we need to find out the moles of sodium chloride, because बच्चों हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मैस है ना, तो हम उस मैस से मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली वॉल्यूम क्लोरीन गैस का नहीं निकाल सकते। सो आई एम गोना यूज़ द फॉर्मूला एम ओवर एम आर, and the mass is 2.34, and the molar mass of NaCl, let's calculate mR of NaCl. The mass of sodium is 23, the mass of chlorine is 35.5, so it's gonna be 58.5. okay, so let's put this value over here, 58.5, and 2.34 divided by 58.5, it will give you 0.04 moles. Okay bachcho, so we have now the moles of sodium chloride, and in the second step we need to find out the moles of chlorine, बिकॉज बच्चों क्लोरीन का हमें डाटा गिवन नहीं है, क्लोरीन की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता। सो आपने वॉल्यूम निकालना है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे वी ओवर 24। ओके, नाउ अगर आप वॉल्यूम क्लोरीन का निकालना चाह रहे हो, सो आपके पास मोल्स होने चाहिए। मोल्स के लिए हम रेशो मेथड लगाएंगे। अगेन आई एम गोना राइट डाउन नोन एंड अननोन ओवर हियर। ओके बच्चों, so the known is sodium and the unknown is chlorine, so I'm going to write down sodium and chlorine. And the next step is we need to check the coefficient is 2, chlorine is 1, और मेरे बच्चों मोल्स ऑफ सोडियम क्या हैं, 0.04। ओके बच्चों, 0.04। so I'm going to use x over here, let's cross it, and you will end up with 2x equals to 0.04. 0.04 divided by 2, it will give you 0.02 मोल। सो मेरे बच्चों मोल्स आपके पास जो आगे, ये किसके मोल्स आए, मोल्स ऑफ क्लोरीन। ओके, नाउ 0.02 equals to v over 24, and 0.02 times 24, it will give you the volume. So 0.02 times 24, it will give you 0.48 decimeter cube. Okay बच्चों, and if you want to convert into the centimeter cube, because हमें आंसर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, so 1 dm cube equals to 1000 cm cube, so हम इसको multiply by 1000 करेंगे, so 0.48 times 1000, it will give you 480. So the right answer is 480 centimeter cube. Okay.